Hello students, I am Akhilesh Kumar Srivastav from ABS Engineering College Ghaziabad. In the series of data structure lectures, we will discuss about the heap sort today. We already have discussed about bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and merge sort. Out of these sorting techniques, we have seen that bubble selection and insertion sort have the order of n square complexity, time complexity in worst case, and merge sort and heap sort, heap sort and quick sorts have the average case time complexity of n log n. In the n log n series, the heap sort is also added and we will see how does the heap sort work. So, the outline of today's lecture will be, we will first understand what are the heaps, then we will see what are the properties of the heap, then we will see that how can an array be converted to the binary heap, then we will discuss about the heap sort, and finally we will have the time and the space analysis and comparison among the other sorting techniques. So, let us see what are the heaps. So, आप लोगों ने खेतों में एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जब थ्रेशिंग होती है गेहूं की या धान की, जब थ्रेशिंग होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी थ्रेशिंग से आइटम्स निकलते हैं वो हीप का शेप ले लेते हैं, और अगर आप इसमें से थोड़ा सा गेहूं निकाल के कट्टे में भर लें, देन अगेन ये रीशेप होके हीप का ही शेप ले लेता है. सो हीप जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वो भी लगभग ऐसा ही है. तो डेटा स्ट्रक्चर वाला जो हीप है वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. वन इज दी शेप प्रॉपर्टी. इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये हीप है. इन दिस हीप यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस हीप. दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. In case this were a almost complete binary tree, even then it would have been the heap, or even then heap की property में shape की property को वो satisfy कर रहा होता. The other property is the order property, और order property के हिसाब से heap दो तरह के हो सकते हैं, एक min heap और एक max heap. In the min heap, the root node will contain the least information. This is the definition of the min heap. The root node will contain the minimum information and its children nodes will be containing more information, and recursively this is true for all the subtrees in the heap. For example, let us see, 2 is the minimum information, 3 and 6 are the children of 2, so they are containing more information, and then for this subtree 3 is the information here and its children are 8 and 10. These two children are containing more information than the parent. So, recursively this is true for all the trees or all the subtrees. Similarly, there may be a max heap also. In the max heap, the root node contains the largest information. For example, the right hand side tree is telling, or right hand side tree is actually the max heap, जिसमें root node के पास maximum information होगा और child nodes के पास कम information होंगे. So, 10 and 12 are less than 15 because 10 and 12 are the children node of 15. Similarly, अगर हम इस सब ट्री की बात करें, so 10 बड़ा information है क्योंकि ये parent है, और child nodes are containing less information. So, a heap or a max heap will have the maximum information at the root and the children nodes will contain less information than the parent. So, let us see what is the implicit representation of the binary trees. Let us suppose हमारे पास एक array है और इस array के elements ऐसे given है. हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि array का index 1 से start हो रहा है और सबसे largest index जो हमारा है वो 1 है, सबसे छोटा index हमारा 1 है. तो इस array के elements को अगर हम tree के form में arrange करें, so arrangement ऐसे होगा: 1 is the root node, 2 is the left child of the root node, 3 is the right child of root node, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4 है, 2 का राइट चाइल्ड 7 है. इसका मतलब है कि हम एक एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसको लेफ्ट राइट ऐड करते चले रहे हैं. सो अगर हमने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके अरेंज किया लेफ्ट राइट फॉर्म में, तो ये हमारा बाइनरी ट्री बना.
और ये इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ट्री का। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। प्रॉपर्टी क्या होती है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की, कि अगर इसमें टोटल लेवल्स l हैं, सो l-1 लेवल तक ट्री पूरा कंप्लीट होता है, और lth लेवल में या लास्ट लेवल में हम नोड्स को लेफ्ट राइट करके ऐड कर सकते हैं। सो देन वी हैव the implicit representation of the binary tree. You can see that the index of this node is 1, index of this node is 2, index of this node is 3, index of this node is 4, and so on so forth. We have the increasing sequence of the index for the level. It means हमने जो arrangement यहाँ पे किया है वो level order arrangement किया है। तो level order arrangement अगर हम कर दें किसी array के elements का, तो ये implicit representation हो जाता है। और इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन केवल कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को सूट करेगा, हर तरह के बाइनरी ट्री को यह सूट नहीं करेगा। समथिंग मोर अबाउट दिस इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और हमने इंडेक्सेस को मार्क कर रखा है, तो हम कह सकते हैं कि इस इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन में वन इंडेक्स पे मेरा रूट नोड होगा। द रूट नोड विल बी एट द वन इंडेक्स। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक किया, लेट्स से हमने 4 को पिक किया या 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक किया, तो इसका पेरेंट होगा 2 पे। 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक किया तो इसका भी पेरेंट है 2 पे। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट इज एट i/2 इंडेक्स। अगर i इंडेक्स पे चाइल्ड नोड है तो पेरेंट का जो इंडेक्स होगा वो i/2 होगा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि हमारा एक एलिमेंट है वो i इंडेक्स पे है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई लोकेशन पे या 2 इंटू आई इंडेक्स पे, और इसका राइट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई प्लस 1 इंडेक्स पे। सो दिस इज अबाउट द इम्प्लिसिट बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। नाउ इसी का एक एग्जांपल, यहां पे हमने 1 को रूट नोड बनाया है, 4 के लिए पेरेंट है 2, ठीक है। यू कैन सी दैट 4 के लिए जो पेरेंट है वो 2 है, या फिर 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट का जो पेरेंट है वो 2 इंडेक्स पे है, 8 इंडेक्स वाले एलिमेंट का जो पेरेंट है वो 4 इंडेक्स पे है। सिमिलरली अगर हम 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट की बात करें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 6 इंडेक्स पे है 2i, और इसका राइट चाइल्ड 7 इंडेक्स पे है 2 इंटू आई प्लस 1 इंडेक्स पे है। नाउ अगर हमें गिवन एरे से हीप बनाना है तो उसके लिए दो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होंगे। एक तो अगर हम मैक्स हीप बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्ड मैक्स हीप ऑपरेशन, और अगर हम मिन हीप कॉल कर रहे हैं तो बिल्ड मिन हीप। दोनों में से कोई एक कॉल होगा। सो ये मान लीजिए कि अगर हमें मैक्स हीप बनाना है तो सबसे पहले एल्गोरिथम जो हम कॉल करेंगे दैट विल बी बिल्ड मैक्स हीप, और बिल्ड मैक्स हीप ऑपरेशन जो है वो रिकर्सिवली यूज करेगा एडजस्ट ऑपरेशन को। नाउ लेट्स सी कि एडजस्ट ऑपरेशन क्या है। एडजस्ट ऑपरेशन किसी सब ट्री को हीप में कन्वर्ट करता है। किसी सब ट्री को हीप में अगर कन्वर्ट करना होगा तो मैं एडजस्ट ऑपरेशन को कॉल करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस सब ट्री को हीप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं ये देखूंगा कि इसका रूट कहां पे है। सो दिस इज द रूट। फिर मैं इसका फाइंड करूंगा चाइल्ड नोड कहां पे है। सो दीज आर द 2 चिल्ड्रन ऑफ द 4 नोड। इन 2 चिल्ड्रंस में लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 14, और इस लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन को 4 से एक्सचेंज कर देंगे अगर हम मैक्स हीप बना रहे हैं तो, क्योंकि पेरेंट की तरफ लार्जर इंफॉर्मेशन जाना चाहिए और चाइल्ड की तरफ स्मॉल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। सो यू कैन सी दैट द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन दैट वी हैव डन इज दिस वन। नाउ सिंस आपने एक्सचेंज किया था इस नोड से जहां पे 4 आ गया है, तो अब हम इसके चिल्ड्रन नोड्स को भी देखेंगे। सो इसके चिल्ड्रंस हैं 2 एंड 8। इन दोनों चिल्ड्रन में लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन 8 है। 8 लार्जर है देन द पेरेंट दैट इज 4, इसलिए हम इन दोनों को भी एक्सचेंज कर देंगे। और इस एक्सचेंज के बाद 4 नोड के नीचे कोई भी और नोड्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि एडजस्ट ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर दिया। इस एडजस्ट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यू हैव द मैक्स हीप। 14 इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन। 14 के चिल्ड्रंस हैं 8 और 7 जो कि 14 से छोटे हैं। 8 से छोटे एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। 7 से छोटा एलिमेंट है 1। So we have completed the adjust operation like this. So for completion of the adjust operation, we will start from the parent node. Then we will see that which among the parent and the child nodes are the larger.
In case the child nodes are larger, we will exchange them with the parent node, and this recursively goes until we reach till the last node. Now let's see how does this procedure works. हम इसके लिए algorithm लिख रहे हैं. So adjust operation में सबसे पहले हमें ये देखना होगा, अगर मान लीजिए कि एडजस्ट ऑपरेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा आई पोजीशन है जहाँ से हम एडजस्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स से n इज द लार्जेस्ट इंडेक्स, इसके बाद कोई और इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो पेरेंट और चाइल्ड नोड में हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा लार्जर है. यहाँ पे 3 नोड्स हमारे पास हैं, एक है रूट नोड और एक है लेफ्ट चाइल्ड नोड और एक है राइट चाइल्ड नोड. सो हमें अब ये फाइंड करना है कि रूट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में लार्जेस्ट कौन सा है. तो 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट अगर हमें फाइंड करना है तो दिस विल बी अ 2 स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट द लार्जर अमंग द 2 एलिमेंट्स and the larger among the 2 element will be compared with the third element for finding out the largest among the 3 elements. So यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं, मान लेते हैं कि हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड से में से लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे और इनमें जो भी लार्जर होगा उसको हम पेरेंट नोड से कंपेयर कर लेंगे और पेरेंट नोड और चाइल्ड में जो भी बड़ा होगा हम उसको रूट की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे हम यही प्रोसेस कर रहे हैं. अगर हमारा आई पोजीशन है जहाँ पे स्टार्ट हमें करना है, लेट्स से आई इज दिस पोजीशन और यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है एडजस्ट ऑपरेशन, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा 2i पे और इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा 2i+1 लोकेशन पे. तो अगर 2i विद इन द लिमिट है, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है. अगर 2i लेस देन और इक्वल टू n है तो इसका मतलब यह है कि हमारा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है. अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो हमने लेफ्ट का इंडेक्स लेफ्ट में ले लिया और राइट का इंडेक्स राइट में ले लिया. नाउ एक हमने j पैरामीटर लिया जो कि लेफ्ट और राइट में से लार्जेस्ट बताएगा. फिलहाल हमने मान लिया कि j इज द इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड. अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो राइट मींस 2i+1 विल बी लेस देन और इक्वल टू n. लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन तो तभी पॉसिबल है जबकि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो. सो लेट्स सी दैट कि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं. मान लेते हैं एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने राइट और लेफ्ट को कंपेयर कर लिया. अगर राइट बड़ा है तो j को राइट पे ले लिया और अगर लेफ्ट बड़ा होगा तो लेफ्ट पे तो ऑलरेडी j है. तो लेफ्ट और राइट में जो भी बड़ा है वो उसका इंडेक्स j है. देन वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद द पेरेंट नोड. अगर चाइल्ड नोड की इंफॉर्मेशन मींस aj इज लार्जर देन द पेरेंट नोड देन वी विल एक्सचेंज. और एक्सचेंज करने के बाद मान लीजिए कि यहां पे हमने इस वाले नोड से पेरेंट को एक्सचेंज कर दिया. देन इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे जिससे हमने एक्सचेंज किया था उसके नीचे भी सब ट्री एग्जिस्ट करता है. तो इस सब ट्री के लिए भी हम एडजस्ट ऑपरेशन चलाएंगे. तो इसलिए चूंकि जे इंडेक्स वाला नोड ऐसा था जिससे हमने एक्सचेंज किया था, तो अब हम क्या करेंगे कि जे वाले इंडेक्स को आई मानते हुए फिर से यहां पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. तो जब तक हमारा लेफ्ट चाइल्ड ith नोड का एग्जिस्ट करेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. अगर लेफ्ट चाइल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल हम एक्सचेंज करते करते इस नोड पे पहुंच गए, इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस नोड का इंडेक्स है लेट्स से n, अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो 2n, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2n इंडेक्स पे हो जाएगा जो कि लिमिट में नहीं है. तो अगर वो लिमिट में नहीं होगा तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. एक चीज और है, एक कंडीशन आप अगर देखें कि लेट्स से हमने 100 लिया, 50 लिया और 60 लिया. हम एडजस्ट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. j हमने इसको ले लिया, लेफ्ट और राइट में लार्जर राइट वाला है तो j अब यहां आ गया. इन दोनों को हमने कंपेयर किया, पेरेंट और चाइल्ड को. पेरेंट ऑलरेडी बड़ा है चाइल्ड से. इसका मतलब क्या है कि ये जो सब ट्री है वो ऑलरेडी हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसलिए अब इस प्रोसेस को हम इसी पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे. हो सकता है कि इसके नीचे और भी सब ट्री हो, उनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए अगर चाइल्ड नोड का इंफॉर्मेशन पेरेंट से बड़ा है तब तो हम चाइल्ड और पेरेंट को एक्सचेंज करेंगे. लेकिन अगर चाइल्ड नोड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी छोटा है या पेरेंट नोड का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बड़ा है चाइल्ड नोड से, उस केस में हम इस प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे. सो दिस इज द एडजस्ट ऑपरेशन. नाउ बिल्ड मैक्स हीप, हमें एक गिवन हीप है और उस गिवन एरे है, उस गिवन एरे से हमें हीप बनाना है. तो उस हीप को बनाने के लिए हम एक गिवन ट्री में जितने भी सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं उन सब ट्रीज को 1 बाई 1 हीप में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास इस सब ट्री में अगर हम इंडेक्सेस को इस ट्री में अगर हम इंडेक्सेस को मार्क करें
तो सबसे पहला सब ट्री हमारा ये है, इसको हम हीप में कन्वर्ट करेंगे। इस सब ट्री का रूट नोड 4 इंडेक्स पे है। इसके पहले जो सब ट्री है उसका रूट नोड 3 इंडेक्स पे है। फिर उसका जो इसके पहले जो सब ट्री है उसका जो रूट नोड है वो 2 इंडेक्स पे है। एंड देन सबसे स्टार्टिंग में जो सब ट्री है उसका जो रूट नोड है वो 1 इंडेक्स पे है। तो हम 4 इंडेक्स वाले को, देन 3 इंडेक्स वाले सब ट्री को, देन 2 इंडेक्स वाले सब ट्री को, देन 1 इंडेक्स वाले सब ट्री को अलग अलग हीप में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हमने एक लूप चलाया n/2 से 1 तक, मींस उल्टा हम लूप चला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 9/2 दैट विल गिव अस अ वैल्यू 4। सो द लूप विल रन फॉर 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1। हर बार हम i को चेंज करते हुए, मींस रूट नोड को चेंज करते हुए एडजस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो गिवन ट्री है वो हीप में कन्वर्ट हो जाएगा, गिवन एरे हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा गिवन एरे है तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, एडजस्ट 5 10 परफॉर्म करना है। एडजस्ट 5 10 का रिजल्ट ये होगा, अगर हम इंडेक्सेस मार्क करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10/2, क्यों हम एडजस्ट 5 10 कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 है, लार्जेस्ट इंडेक्स 10 है, तो हम 10/2 5 से एडजस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला सब ट्री ऑलरेडी हीप है। आगे प्रोसेस करते हैं, ये हमारा 4 इंडेक्स है, यहां से स्टार्ट करके इसको हीप में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये जो 14 है ये ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडजस्ट 4 10। 4 10 के बाद हम 3 10 करेंगे, मतलब कि 3 इंडेक्स हमारा ये वाला है, इस वाले सब ट्री को कन्वर्ट करेंगे हीप में। 10 बड़ा है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये रिजल्ट है एडजस्ट 3 10 का। देन वी आर परफॉर्मिंग एडजस्ट 2 10, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 2 इंडेक्स से। जब 2 इंडेक्स से हम चलाएंगे तो 16 बड़ा है, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि 7 बड़ा है और 1 छोटा है, इसको भी हम एक्सचेंज कर देंगे। फाइनली वी हैव टू परफॉर्म एडजस्ट 1 10, मींस रूट नोड से स्टार्ट करके एडजस्ट चलाएंगे। इसमें 16 बड़ा है, 16 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा। दिस इज द रिजल्ट। एक्सचेंज इस वाले नोड से हुआ था, इसके नीचे भी सब ट्री है, 14 बड़ा है, 4 छोटा है, एक्सचेंज कर देंगे। देन इसके नीचे भी सब ट्री है, 8 बड़ा है, 4 छोटा है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द हीपिफाई ऑपरेशन और बिल्ड मैक्स हीप ऑपरेशन, जिससे कि गिवन ट्री को हमने हीप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आफ्टर दिस लेट्स से वी आर गोइंग टू परफॉर्म द हीप सॉर्ट। सो हीप सॉर्ट अगर हमें परफॉर्म करना है, गिवन एरे है उसको सॉर्टिंग करना है, तो हीप सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक मैक्स हीप बना लेंगे। मैक्स हीप बनाने के बाद रूट नोड पे लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन होगा। लेट्स से 100 इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन इन दिस ट्री। इंडेक्सेस अगर हम मार्क करें तो इंडेक्सेस वुड बी लाइक दिस। हम क्या करते हैं कि लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन को सबसे लास्ट इंडेक्स पे पहुंचा देते हैं एंड 7th इंडेक्स वाले एलिमेंट को रूट पे पहुंचा देते हैं। सो दैट वी हैव डन विद द AJ विद A1। J यहां पे मान लेते हैं कि लास्ट इंडेक्स है, तो 1 इंडेक्स मतलब रूट नोड को लास्ट इंडेक्स वाले इंफॉर्मेशन से एक्सचेंज कर देते हैं। सॉर्टेड एरे में ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन होगा वो लास्ट वाले इंडेक्स में होगा एरे में। आफ्टर दिस, चूंकि ये 7 वाला एलिमेंट जो कि छोटा एलिमेंट है उसको हम रूट पे पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है कि हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई हो। तो इस हीप की प्रॉपर्टी को रीएडजस्ट करने के लिए हमने एडजस्ट चलाया। चूंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी हीप है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हीप होगा, तो डिस्टर्बेंस केवल 1 इंडेक्स पे आया है, इसलिए 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके हम अगेन एडजस्ट करके इसको हीप में कन्वर्ट कर देंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा एक एरे है, इस एरे को हमने जब मैक्स हीपिफाई से कन्वर्ट किया मैक्स हीप में, तो ये कन्वर्ट हुआ। 16 लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 1 और 16 को, दिस इज द 16 एंड दिस इज 1, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने के बाद 1 यहां पे आ गया, भूल जाते हैं हम कि हमारे पास ये नोड है। फिर हमारे पास ये 1 है और आप देख सकते हैं कि हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई है। ये पार्ट ऑलरेडी हीप है, ये पार्ट ऑलरेडी हीप है, ये भी पार्ट ऑलरेडी हीप है, तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा
और इस एडजस्ट को परफॉर्म करने के बाद ये हमारे पास हीप आ गया। सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन अब रूट पे है, इसको नेक्स्ट लार्जेस्ट पोजीशन, जैसे कि लार्जेस्ट पोजीशन ये वाली थी, जो जस्ट इससे प्रीवियस लार्जेस्ट पोजीशन ये वाली होगी, तो अब हम इसको और इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हमने 1 और 14 को एक्सचेंज किया, जब 114 को एक्सचेंज किया तो हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। ये जो रेड कलर के सर्कल में नोड्स हैं, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी हीप के फॉर्म, ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में पार्ट बन रहे हैं। अगर हम इंडेक्सेस फिर से मार्क करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 9th और 10th इंडेक्स पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। 9th एंड 10th इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज्ड है। अब हमें बाकी के बारे में चिंता करना है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 8 तक हम एडजस्ट चलाएंगे। 1 से लेके 8 तक अगर हम एडजस्ट चलाएंगे तो एडजस्ट ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन हमने इसको हीप में कन्वर्ट कर दिया। हीप में कन्वर्ट करने के बाद ये जो 10 नोड है वो नेक्स्ट लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन हो गया। इसको 8th इंडेक्स वाले एलिमेंट से एक्सचेंज कर देते हैं। तो अगर हम 8th इंडेक्स वाले एलिमेंट से इसको एक्सचेंज करेंगे, सो वी हैव 8th 9th 10th इंडेक्स इन द असेंडिंग सीक्वेंस। बचा हुआ जो पार्ट है वो हीप नहीं है, इसको हीप में कन्वर्ट कर लीजिए बाय कॉलिंग द एडजस्ट फंक्शन A17। जब आपने एडजस्ट A17 चलाया तो देन आपके पास 9 लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन आ गया रूट नोड पे, कंसीडरिंग दैट दिस इज अवर टारगेट एरिया। अब आप इसको लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट मतलब कि 7th इंडेक्स वाले एलिमेंट से एक्सचेंज कर दीजिए, और एक्सचेंज करने के बाद अगेन एक प्रोसेस चलाइए एडजस्ट ऑपरेशन। एडजस्ट करके इसको फिर से हीप में कन्वर्ट कर दीजिए। सो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं। ये कब तक हम कंटिन्यू रखेंगे? जब तक कि हमारे पास एक एलिमेंट ना आ जाए। ओके, सो वी आर देन एक्सचेंजिंग A1 with A4, performing adjust A13, then we are doing adjust exchange of A1 and A3, then performing adjust A12, then again we are doing the exchange of A1 and A2, then performing adjust operation A11. So we now have the single element will be considered to be sorted. So ये जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग असेंडिंग सीक्वेंस में हमारे नंबर्स अरेंज हो गए। ये जो हीप सॉर्ट है, हीप सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ log n है वर्स्ट केस में, और एवरेज केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n ही होगी। हम ऐसा मान सकते हैं कि चूंकि सारे केसेस सेम है, इसलिए हम थीटा नोटेशन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को log n रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो हम स्पेस ले रहे हैं, स्पेस भी एडिशनल बहुत कम लिया गया है। अगर आप एडजस्ट एल्गोरिथम और हीप सॉर्ट एल्गोरिथम को रेफर करेंगे तो उनमें हमने बहुत कम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए थे। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के लिए मान सकते हैं हमने एक वेरिएबल यूज किया और एक आई वेरिएबल यूज किया हीप सॉर्ट में। सिमिलरली एडजस्ट ऑपरेशन में भी हमने 2 या 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए, लेफ्ट, राइट और जे। तो जो कंप्लीट पिक्चर है उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यहां पे, और log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। नाउ अगर हम इसका कंपैरिजन करें अमंग द अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट थीटा n² टाइम लेंगे एवरेज केस में। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट n log n टाइम लेते हैं, और हीप सॉर्ट भी n log n टाइम लेगा। हीप सॉर्ट n log n टाइम केवल इसलिए ले रहा है क्योंकि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं, और इसमें प्रोग्रेस, फॉर एग्जांपल एडजस्ट का जो प्रोग्रेस है वो रूट से लेके लीफ तक है। तो रूट से लेके लीफ तक जो आपको एफर्ट करना है वो log n एफर्ट करना होगा, क्योंकि ट्री की जो हाइट होती है वो log n होती है। नाउ अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पे आप देखिए कि जो ऑर्डर ऑफ n log n वाली सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं टाइम में, वो स्पेस थीटा n और थीटा log n ले रहे हैं, जबकि हीप सॉर्ट थीटा 1 स्पेस ले रहा है। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के बेसिस पे हीप सॉर्ट इज द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक, बिकॉज इट इज टेकिंग
only constant time, constant amount of space for performing the operation. So, out of the n log n sorting techniques, we can once again see that in the n log n sorting techniques we have merge sort, quick sort and heap sort. These, out of these three, heap sort is having the best space complexity. Thank you.